Hi, good evening, everyone. Very good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good Very evening, good. sir. Good evening, good evening, good evening. What we had covered last? VLOOKUp. What VLOOKUP we did? Using VLOOKUP in 3 different sheets. Is it possible? See, we have name here. I will type something name and I should get anything, location. Okay. The name is written like this. Complete name with name and surname both. Okay. Now what happens is, let's say that I have a name over here. I want to find something called Astrid Mendonza. Okay. Example. Okay. Now you will write here equals to VLOOKUP. You say up 1, comma, from B to H, and then I want 1, 2, 3. That is third one, and say comma 0. Okay, na? So now I hope you have understood this formula. Everyone, this is the basic VLOOKUP. Okay. It means he's showing you NA just because there is no name in K1, है ना? K1 में नाम आ जाएगा तो वो कर लेगा. अगर मैंने K1 में लिखता हूँ Astrid, still he is not getting. Why? Exact नाम नहीं है इसके लिए सर. Exact match नहीं. Okay. Exact match मतलब क्या लिखूं मैं? What you want me to type? 0. नहीं, what you want me to type here? Astrid Mendonza. Okay. You mean to say कि मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा. Astrid. It's Mendonza. Let me see. I think spelling right है. Astrid. ASHTRED. Mendonza. Okay. I'll just copy this portion and I'll paste it over here. फिर भी नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा. क्यों? Just check. Because we have started with C. It should be from B. CH. BS. Sorry. So ये B से आएगा, right? आ गया ना? Yes, sir. लेकिन मैं अगर Astrid लिखता तो ठीक है ना? सोचो ये कितना बड़ा चैलेंज है ये. आपको नहीं लगता? छोटा सा चीज है, इट्स वेरी स्मॉल थिंग, बट कभी नोटिस नहीं किया होगा आप लोग. दोज हु आर VLOOKUP, VLOOKers, जितने भी आप लोग VLOOKers हैं, already you people are using that. Have you come across something like this? कि साला why will I, sorry to say use this, but why will I use the complete name? Because मेरे को यार याद कहाँ से रहेगा? I can just type something Astrid के ले लेना फटाफट, or I can type something, anything what I remember of the name. For example, I can just write here if I write here Sharma, then I should get the very first Sharma here. आ रहा है समझ में? Yes, sir. So if I want to look for something which is partial, ये बहुत अच्छा चीज है. ये आपको आना चाहिए ये करने के लिए, क्योंकि अभी आप लोग ऑलरेडी बहुत कुछ सीख गए हो. सर सेम वाइल्ड कार्ड्स यूज होंगे. वेरी नाइस. कौन था ये? निपुण सर. या निपुण. क्योंकि when you talk about partials, when you talk about something what you don't know, तो देखो वाइल्ड कार्ड्स कितना जगह पे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा. यू शुड यूज दैट वेरी प्रिसाइजली. उसको अच्छा यूज करोगे अगर आप, तो बहुत जगह पे कमाल दिखाएगा अपना. I have seen people not using wildcards in VLOOKUPs. You should always use VLOOKUPs के अंदर wildcards. Because नहीं तो क्या होगा? Always you'll have to type the entire word, which becomes a little challenge. हमेशा नहीं हो सकता यार ऐसा. अब ये तो ठीक है, अभी एग्जांपल ले लो. चलो ये ठीक है. अभी मैं आपको ये वाला शीट खोलता हूँ, रुको. Okay, I have to open the sheet and I'm sharing the sheet with you. ये वाला. अब ये शीट दिख रहा है आपको? Yes, sir. Now I want
कि name of the song I will type here and I should know कि this song is from which movie. आप समझ रहे हो? Yes, sir. ये कितना इंपॉर्टेंट है देखो। अभी एग्जांपल ले लो। अभी गाना मुझे याद है, कौन सा गाना है? गाना है आई हैव द डेटाबेस, उसमें मेरे पास बहुत सारे गाने हैं। तो लेट मी चेक, आई हैव अ गाना कॉल्ड, ओके, आई जस्ट वांट टू टाइप हियर, गाना है उर्वशी उर्वशी टेक इट इजी उर्वशी। ये सब लोग ने सुना है, राइट? नाउ it's not necessary what you remember right now. I can just write something like take it easy, you know, and I should get the movie name. Or I can just write Urvashi, or I can write Mukabla, or I can anything if I remember of that song. बोले चूड़ियां बोले कंगना गाना है तो मैं लिखूंगा बोले कंगना. Not always I will write what I remember, right? Or if you have, देखो कहाँ यूज होगा ये. If you have in one name, if you have multiple names, then whatever you remember, you can use that. So chalo, how you are going to use that? So what will I type it over here to get the movie name over here? Or in your sheet, आप लोग क्या करोगे? How will you use the wildcard? तो वाइल्ड कार्ड वाला मेरे को कुछ समझ नहीं आया सर लास्ट में. क्या है? Okay, जैसे कि मैं अभी इसको बोलता हूँ कि I say equals to can you look up for, मुझे बोलता है what you want to look. I say look for this H2. ठीक है ना? This is my database. और H2 में क्या लिखा हुआ है? I'm writing the name of the song. Okay. He's asking me from where? I say from A to F because A के अंदर I have song का नाम. Then he's asking me what you want. So I want F. So A, B, C, D, E, F. That is six column के अंदर movie का नाम पड़ा हुआ है. Comma 0. ठीक है? You press enter, you get NA. But if you type, ये पूरा तुमको लेना पड़ेगा कि अभी जैसे गाना है लव, क्या है ये, मदर मदर डियर मदर, जब जब देखूं, या फिर ये देखो मिस्टर लोवा लोवा. अब लेट्स से कि मैं इसको बोलता हूँ, यहाँ से पूरा कॉपी करके आता हूँ और बोलता हूँ मिस्टर लोवा लोवा. अब मुझे वो बोल रहा है कि इट इज फ्रॉम द मूवी कॉल्ड इश्क. लेकिन अभी वो एग्जैक्ट कौन याद रखेगा यार, है कि नहीं? अब मैं ऐसा लिखता तो भी मिलना चाहिए था ना मुझे, लोवा लोवा लोवा. तो पता है क्या करने का, वाइल्ड कार्ड कैसे यूज करने का? वो सर H2 में यूज होगा वाइल्ड कार्ड? नहीं, हम लोग को फॉर्मूला में यूज करना है, लेकिन ठीक है बिकॉज वी आर राइटिंग इन फॉर्मूला ना, तो फॉर्मूला में H2 में यूजर टाइप करेगा. H2 इज फॉर द यूजर. एक बेचारा एकदम गरीब आदमी है वो यूजर, उसको कुछ आइडिया नहीं. ओके, नाउ सी व्हाट विल हैपन. अभी वो यूजर जो भी टाइप करेगा वो तो लोवा टाइप करेगा. बट आई जस्ट प्रूव यू दैट हाउ वाइल्ड कार्ड वर्क्स. अगर आप लोगों को वाइल्ड कार्ड आता है तो ठीक है. वाइल्ड कार्ड दो तरीके के होते हैं प्रकाश जी. एक होता है क्वेश्चन मार्क और एक होता है स्टार. पता है ना? ओके, स्टार का मतलब होता है स्टार विल रिप्लेस, इट विल रिप्लेस द एंटायर वर्ड. जहां पर भी आपने स्टार लगाया, इसका मतलब ये होता है कि आप उसको बोल रहे हो दैट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनी देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. ओके, सो अगर मैंने ऐसा लिखा कहीं पर भी, ऐसा लिखा, यू नो व्हाट दिस मीन्स. मैंने लिखा लोवा स्टार. जो भी लोवा से स्टार्ट होगा वो सब. इसका मतलब होता है कि एनीथिंग विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम लोवा, बट पीछे कुछ भी होने दो. आई जस्ट रिमेंबर दैट इट शुड स्टार्ट फ्रॉम LOVA. ठीक है? तो वो क्या करता है, लोवा ले लेगा एंड लोवा के बाद कुछ भी चलेगा. ओके, तो अब मैं अगर यहां पर ऐसे लिखूं तो लोवा स्टार, इट मीन्स कि यहाँ पे अपना जो फॉर्मूला है अंदर वी लुकअप, वो तो एग्जैक्टली H2 में जो लिखा है इज लुकिंग फॉर दैट. H2 में पता है क्या लिखा है, लोवा स्टार मीन्स लुक फॉर समथिंग विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम लोवा, और पीछे कुछ भी चलेगा, लेकिन ही शोइंग मी NA बिकॉज यहाँ पर गाना किधर भी लोवा से शुरू नहीं होता है, लोवा किधर बीच में आ रहा है. तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा
कि ऐसा बोलना पड़ेगा कि anything before how many characters I don't know, but I know that there is somewhere over in between called loa, and after that also there can be something I don't know, है ना? अगर मैंने ये वाला चीज यहाँ पे दिया तो let's see what happens. Oh, he is giving me ishq now. समझ में आ रहा है आपको? Yes, अब वो मुझे दे रहा है. ओके, अब मैं इसको बोलता हूँ कि एनी सॉन्ग जहां से मैं बोलूं कि जिसके अंदर प्यार वर्ड आ रहा है, तो ऐसे इट्स प्यार, PYAAR, प्यार एंड स्टार. लेट्स सी. वो बोलता है जान तेरे नाम. इसको पहला पिक्चर मिला, जान तेरे नाम. उसके अंदर गाना है जिसके अंदर ये वर्ड आता है प्यार. आ रहा है समझ में आप लोग को? yes sir. बट वो यूजर थोड़ी ये लिखने वाला है. क्या ये यूजर ऐसा लिखेगा? No. तो देयर आर टू मेथड्स. ये दो तरीके से आप ये काम कर सकते हो. एक बताऊं क्या? वन इज कॉल्ड फूलिंग पीपल. लेकिन आई ऑलवेज मैं कभी भी ऐसे राय नहीं दूंगा कि दुनिया को बेवकूफ मत बनाओ. लेकिन अब प्रोग्रामर जो होता है ना, एक प्रोग्रामर वो कलाकार होता है. वो प्रोग्रामर का काम ही होता है बेवकूफ बनाने का. सो व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे मैं यूजर को बोलूंगा, यूजर तू एक काम कर, तू प्यार ही टाइप कर. क्या बोल रहा हूं मैं? तेरे को जो टाइप करने का, लोवा टाइप कर, प्यार टाइप कर. अब मैं इसको क्या बोलता हूँ, कहीं तो जाके, बिकॉज मुझे फॉर्मूला में लिखने आता नहीं, तो मैं कहीं तो दूर जाके भी लिख सकता हूँ. मैं जेड में जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू जेड, जो दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है. यूजर H2 में टाइप करेगा कोई भी वर्ड, और मैं Z2 को पता है बोल रहा हूँ, Z2 यू आर इक्वल्स टू, यू नो व्हाट, यू आर इक्वल्स टू स्टार. ओके, यू आर इक्वल्स टू स्टार And एंड H2 H2 एंड स्टार. star. लेकिन ये ऐसा देना पड़ेगा मुझे, Yes sir. बिकॉज आई कैन नॉट राइट दिस वे. ऐसा बोलूंगा ना, अगर यू आर इक्वल्स टू स्टार H2 स्टार, तो ये H2 विल नेवर कंसिडर्ड एज रेफरेंस. Yes वो sir. टेक्स्ट पकड़ लेगा. तो ये H2 को रेफरेंस करने के लिए मुझे इसको लॉक करना पड़ता है. इधर गया, हाँ, इक्वल्स टू स्टार एंड H2 एंड अ स्टार. अब देखो क्या होता है कि जैसे ही मैं H2 में डालता हूं लोवा, तो वहां पर देखो क्या बन गया, स्टार लोवा स्टार बन गया ना. आ रहा है कि नहीं समझ में? Yes sir. यस सर. हाँ, तो बोलो कुछ निपुण, यू आर गेटिंग इट राइट. Yes. ओके, सो Yes sir. अब मैं क्या करता हूं, इन माई वी लुकअप, इंस्टेड ऑफ टेलिंग हिम टू लुक फॉर H2, आई विल आस्क हिम टू लुक इनटू Z2. Yes. समझा? अब वी लुकअप H2 को देख ही नहीं रहा है. ओके, दैट्स फाइन. ओके, अब वी लुकअप क्या करता है, मैं देख ही नहीं रहा है. नाउ आई विल टाइप हियर व्हाटएवर आई वांट टू टाइप. जैसे गाना है, ओके, सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर. तो आई कैन राइट एनीथिंग. आई कैन राइट सोल्जर, आई कैन राइट बातें, आई कैन राइट एनीथिंग. सपोज इफ आई राइट सोल्जर, तो गाना आ गया. तो ये पिक्चर का नाम ही सोल्जर है. समझ में आ रहा है? Yes sir. ओके, एंड इफ यू डोंट वांट टू यूज दैट थिंग, और अगर आपको यही चीज वहीं पे यूज करनी है, तो भी करो आप, तो फिर छोड़ दो. तो इधर ही हम लोग को बोलना पड़ेगा वी लुकअप. नाउ डोंट गो टू Z2, तेरे को ढूंढना है H2 ओनली. ओके, बट आई विल हैव टू यूज दैट search. My lookup value is this. So this becomes my lookup value. जो भी H2 में लिखा है उसके पहले भी कुछ भी हो सकता है. anything can be there before H2, जो भी लिखा हो, और it can be after my word anything. So before H2 स्टार लगा दिया, after H2 स्टार लगा दिया. तो I don't need any helping cells there, है ना? Yes sir. See, I got this.
So you can always use wildcards. Okay, now suppose if I ask you कि भाई this is my ID number and get me the name of the person. Okay, I can type any ID number. It's 1972. जैसे मैं 1972 डालता हूँ, एंटर मारूंगा, I should get it's Jude Ferreira. 1972 is Jude Ferreira. If I type 5555, I should get Jonash Ferreira because उसका ID 5555 है. Simple. सर वो आईडी पहले आएगा कॉलम? नहीं, सब ऐसे ही रहेगा. आईडी को ऐसा रख के मैं भी लुकअप से नहीं कर सकता हूँ क्या? सर पता नहीं. देखो ना, ट्राई करो. प्रकाश जी कर लेंगे. सर क्वेश्चन रिपीट करना. सेम. आई विल ID टाइप से K1 name के अंदर, निकालना. K1 में मैं जो भी आईडी टाइप करूंगा, एनी नेम एनी नंबर, K1 के अंदर आई विल टाइप आईडी ऑफ एनी एम्प्लॉय. आई शुड नो द नेम ऑफ दैट एम्प्लॉय. मुझे नाम चाहिए. चलो ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लो आप लोग बाद में. एक बात बताओ, आप लोगों को एच लुकअप यूज नहीं किया ना पुणे? नहीं सर. हम लोग का नहीं हुआ है ना? नहीं सर, फिर भी तुम लोग को तो आता होगा. थोड़ा बहुत सर. थोड़ा बहुत, चलो ठीक है. लेट्स लुक एच लुकअप देखते हैं एक बार फटाफट, देन इसको सॉल्व करते हैं. Yes. ऑपोजिट है एच लुकअप और वी लुकअप. इट्स वेरी सेम सिंटैक्स. जस्ट गो फॉर एच लुकअप. वही पूछ रहे हैं लुकअप वैल्यू. अगर सपोज मैंने बोला एच लुकअप को कि कैन यू लुक फॉर व्हाट स्टार जूड स्टार. करेक्ट. मैं ऐसे भी दे सकता हूं या फिर मैं पूरा दे दूंगा जूड फरेरा. और क्या? He's asking me where you want me to find this. I say find from B to H. सेम चीज मैं दे रहा हूं एच लुकअप को, द सेम सिंटैक्स. बट why will I do that? What you want first? तो पहले आपको पता रहना चाहिए कि आपको चाहिए क्या. So VLOOKUP will always search. सर VLOOKUP will always search your lookup value. ऐसे ढूंढेगा वो, जो भी आप बोलते हो. हाँ, किधर गया ऐसे ढूंढेगा वो. एंड एच लुकअप विल सर्च योर वैल्यू ऐसे. इट मींस वी लुकअप को हमेशा इट विल सर्च इन कॉलम. वी लुकअप विल ऑलवेज सर्च इन वन पर्टिकुलर कॉलम. एक कॉलम के अलग अलग रोज में ढूंढता है. कौन? वी लुकअप. इट विल सर्च इन वन कॉलम with all rows. कौन? VLOOKUP. और HLOOKUP क्या करता है? It will look रोज in one row with all columns. वो एक ही रो में ढूंढेगा भैया. तो जब आप एच लुकअप को बोलते हो ना कुछ भी चीज ढूंढने को, अगर मैंने एच लुकअप को बोला एच लुकअप कैन यू लुक फॉर मी एप्पल, बोलो आप एप्पल मैंगो जो तुम्हारे दिमाग में बोलो. अभी अगर तुमने उसको बोला फ्रॉम ए टू एच, आपको ये इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा अभी कि ये एप्पल को कहाँ ढूंढेगा. बोलो. फर्स्ट रो. गणेश, प्रकाश एंड एवरीवन. फर्स्ट रो में सर. कॉलम्स में सर. कौन से कॉलम में ढूंढेगा? ये
एक सेकंड, ए से एच। सबसे पहली बात, एच लुकअप कॉलम में ढूंढता ही नहीं है। कॉलम, हाँ मतलब रो में, रोज में वो एक ही ढूंढेगा। रो को पकड़ के चलेगा। एक्चुअली वो कॉलम में ही ढूंढ रहा है, लेकिन बराबर बोल रहे हो आप। बोला जाता है ऐसा ही कि एच लुकअप विल ऑलवेज लुक इन डिफरेंट कॉलम्स बट सेम रो। ओके। एच लुकअप कॉलम में ढूंढ के रो नंबर निकाल के देता है, वी लुकअप रोज में ढूंढ के कॉलम निकाल के देता है। सो नाउ इफ यू हैव नॉट मेंशन्ड एनी कॉलम्स हियर, सॉरी रोज, तो एच लुकअप विल ऑलवेज लुक, उसको ए से कोई लेना देना ही नहीं है एच लुकअप को। आपका ए से एच बोला तो वो 1 में जाके ढूंढेगा। इट मींस ये एप्पल जो है वो उसको फर्स्ट रो में जाके ढूंढेगा। और नाउ इफ यू फाइंड एप्पल देन व्हाट यू वांट, रो नंबर, मतलब क्या चाहिए, मैं बोलता 10th नंबर का रो वापस मेरे को रिटर्न चाहिए, कॉमा 0। नाउ इफ यू प्रेस एंटर इट विल गिव यू एन ए, क्योंकि उसको पहले नंबर पूरे रो में फ्रॉम ए टू एच पूरे रो के अंदर उसको कहीं पर भी एप्पल नहीं मिला। ओके अगर मैंने लोकेशन को एप्पल बना दिया और एंटर मारता हूं तो बताओ क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? लंदन। लंदन इज द करेक्ट आंसर, है ना? हाउ मेनी ऑफ यू स्टिल नॉट फॉलोड कि यहाँ पे लंदन क्यों आया? अगर चुप रहोगे तो नहीं सीख पाओगे। नहीं दोबारा बता दो। हाँ, ऐसे चुप नहीं रहने का। ये सोच के बहुत लोग चुप रह जाते कि मैं बोलूंगा तो बाकी सब लोग को क्या लगेगा। अरे तेल लेने का किसको क्या लगता है। अरे सर, सर एक थोड़ा डाउट था कि एच लुकअप जैसे आपने बोला कि हॉरिजॉन्टल में चेक करेगा, ओके सर ये कैसे हुआ? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है हाँ मैं बता रहा हूँ ना, अभी तक पूरा बताया नहीं मैंने। ओके ओके अब यहाँ पे देखो, एप्पल बोला ना मैंने, मैंने इसको बोला एप्पल ढूंढने के लिए, मतलब वो एप्पल नाम का एक वर्ड ढूंढेगा, राइट? अभी उसके बाद का जो आपने ये दिया ना ए टू एच, तो एच लुकअप हमेशा रोज में ढूंढता है। मतलब अगर आपने ऐसा दिया होता ना A5 से लेकर A10 तक, ऐसा अगर आपने, तो वो पता है एप्पल कहाँ ढूंढता? फिफ्थ रो में। सिर्फ 5th रो को पकड़ के चलता हो। लेकिन आपने यहाँ पे तो रो दिया ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? फिर वो क्या करेगा, किधर ढूंढेगा? 1 में। नहीं 1 में, रो नंबर 1 में ही। गणेश जी ये याद रखिए आप, भले आपने A to H दिया है लेकिन वो रो नंबर फर्स्ट रो में ऐसे ढूंढेगा। देखो इधर ढूंढेगा, एप्पल नहीं मिला, एप्पल एप्पल एप्पल, ऐसा ढूंढते रहेगा, लेकिन रो नंबर 2 में नहीं घुसेगा वो। ओके इतना याद रखें। और जैसा ही उसको रो नंबर 1 में जहां पर भी एप्पल मिल गया एज अ टाइटल, आपने बोला है कि मुझे उसी कॉलम का 10वां नंबर का रो चाहिए, तो यहाँ से वो आएगा 1, तो यहाँ पे आएगा एप्पल, एप्पल 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10th में जाके देखो क्या मिल रहा है। ओके लंदन। मन में आ रहा है? ये निकाल के दे रहा है। ओके तो इसका मतलब एक कान में एक बात डाल दो कि ऑलवेज एच लुकअप में आपका जो लुकअप वैल्यू होता है ना, वो कभी भी टाइटल का ही नाम होएगा, क्योंकि आपके टाइटल ही सबसे ऊपर रहते हैं। यू कैनॉट राइट गणेश, सर्च फॉर जेम्स, सर्च फॉर राहुल, ये मैं एच लुकअप को कभी दे ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? Yes, sir. एच लुकअप को मैं नहीं दे सकता हूँ। एच लुकअप को भैया हमेशा टाइटल देने का, मतलब उसको बोलने का एच लुकअप एक काम करेगा क्या, लोकेशन में जाके एक काम करना, जस्ट सर्च फॉर लोकेशन, ऐसे देना पड़ेगा उसको। अब वो फर्स्ट रो में लोकेशन ढूंढेगा और मुझे देखो क्या निकाल के दे रहा है, देखना पड़ेगा। लोकेशन तो है ही नहीं अपने पास, क्योंकि अपने उसका एप्पल बना दिया था, राइट? तो वो फर्स्ट रो में लोकेशन ढूंढ रहा है और उसको किधर भी लोकेशन नहीं मिल रहा है। अब जैसे ही मैं इसको लोकेशन कर देता हूँ, उसको मिल गया, वो बोलते लंदन। अब लोकेशन की जगह पे मैं बोलता हूँ एक काम कर डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट ढूंढेगा। इतना समझा? ओके लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका सपोज अगर डेटाबेस ऐसा चालू रहेगा तो क्या होएगा। अभी देखो, अब देखो इधर एनए आ गया, क्योंकि आपने उसको बोला डिपार्टमेंट ढूंढने का और ए टू एच बोला है, तो वो डिपार्टमेंट को कहाँ ढूंढ रहा है बैठ के? फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो आपका ब्लैंक पड़ा हुआ है फर्स्ट रो में। तब तो ऐसे सिचुएशन में देन आपको फिर पूरा मेंशन करना पड़ेगा कि फ्रॉम A4 से लेकर H60 तक या H100 तक या जो भी आपका डेटाबेस है, अब आ जाएगा। देखो तो अभी वो 4th रो में इज लुकिंग इन 4th रो, डिपार्टमेंट DEPT 4th रो में ढूंढ रहा है। इतना समझ में आया? Yes. ओके अब इसका करने का क्या भैया, करेंगे क्या इसका? आपको अचार डालूं इसका मैं?
ओके लेट्स से सी सिंपल है, अगर आपका डेटाबेस उल्टा रहा तो ओके एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, चलो यहाँ कि सपोज आई हैव ऐसा कुछ लिखा है कि भाई दिस इज पीवीआर एंड दिस इज मैक्सिस पीवीआर मैक्सिस और है लिबर्टी गैलेक्सी और जो भी हो अंबर ऑस्कर्स, ये सब थिएटर्स हैं, ठीक है। ऐसा कुछ है बाहुबली, पठान, ठीक है। और अभी मैं सपोज यहाँ पे बोलता हूँ कि थिएटर के अंदर कौन सा मूवी लगा है, सो आई विल टाइप द थिएटर का नाम हियर। मैं बोलता हूँ भाई लिबर्टी में कौन सा पिक्चर लगा है, तो आई शुड गेट द मूवी नेम ओवर। दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, एकदम छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इक्वल्स टू एच लुकअप को ही बुलाना पड़ेगा बिकॉज वी लुकअप नहीं कर सकता ये काम, बिकॉज माई डेटा जो है वो ऐसा है, उल्टा है। तो एच लुकअप को बोलता हूँ एच लुकअप ये ढूंढने का है तेरे को, राइट, दिस इज द टाइटल। मुझे बोलता है ठीक है कहाँ ढूंढना है, मैं गो टू शीट 3 ओके एंड सर्च फ्रॉम ए टू ए बी सी डी ई एफ जो भी है, ठीक है, पूरा दे दिया, ए टू एफ दे दिया उसको मैंने। ओके फिर मुझे बोलते मिल गया तो क्या करने का, मैं बोलता मिल गया तो सेकंड नंबर का रो मेरे को दे देने का। आई नो दैट सेकंड नंबर का रो में पिक्चर है। गणेश आपको समझ में आ रहा है, मैं आपको यही चीज उसी शीट में लाके देता हूँ पहले बाद में, तब आपको समझ में आएगा। अब देखो एंटर मारता हूं मैं, आई गॉट दिस। अब मैं बोलता पीवीआर में क्या लगा है, तो मुझे बोलता पठान लगा है। ओके गणेश इधर देता हूं मैं आपको सॉल्व करके, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ एच लुकअप, मुझे बोलता है क्या ढूंढना है, तो मैं यहाँ से बोलता हूँ डबल कोट्स के अंदर कि ऑस्कर ढूंढना है तुझे, ऑस्कर। मुझे बोलते कहाँ पे ढूंढना है, तो मैं बोलता हूँ यू हैव टू सर्च हियर, ये मेरा डेटा है, ठीक है, ठीक है। मुझे बोलते ठीक है, अब ये क्या करेगा, ऑस्कर को कहाँ ढूंढेगा मालूम है, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में ढूंढेगा। और मैं बोलता हूँ मिल गया तो गिव मी सेकंड रो आउट, बस। और सेकंड रो पे तो मूवी है, तो एंटर मारता हूँ मैं। इधर तो कुछ एरर है क्या, क्या किया आपने, सर अच्छा लुकअप इधर लिखा है। अरे एच नहीं लिखा ना भाई, एच लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। ऑस्कर ढूंढेगा, उसको ऑस्कर मिल गया, सेकंड रो में सुल्तान है तो सुल्तान आ गया। इज दैट ओके नाउ, सर देखना है एक यस बार, सर। देख लो। नाउ फॉर न्यू एग्जांपल, एक मिनट ना, मैं आपको एक शीट देता हूँ, एक ऐसा शीट है ये छोटा सा, चलो, वेर आई हैव टोटल सेल्स है, ये लोग सब लोग का, ठीक है। ओके नाउ लेट्स से दैट आई हैव द नेम्स समवेयर over here. Now my question is, I will just type the month name over here. मैं यहाँ पे लिखूंगा मई। जैसे ही मई लिखा, मुझे मई महीने का सेल्स, मेरे एम्प्लॉयज के मई महीने के सेल्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जून, आई शुड गेट जून मंथ का सेल्स। जैसे ही यहाँ पे मंथ चेंज, द एंटायर टेबल विल चेंज। अब यहाँ पे एक सेल चेंज नहीं होएगा, सारे चेंज हो जाएंगे। आ रहा है समझ में तुम लोग को मेरा क्वेश्चन? यस सर। डेटा कहीं और पड़ा हुआ है, डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये मेरा डेटा है, बट यहाँ पे आई हैव लॉट ऑफ एम्प्लॉइज, सारे एम्प्लॉइज का मेरे पास में सब पूरा गड़ दी है। आई जस्ट वांट, यहाँ पे आई हैव
for all the months, like from the entire years का है वो. But let's say this is again a small example where I can show you, like you'll understand कि HLOOKUP क्या कर सकता है. मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही महीने का रिकॉर्ड चाहिए for all my employees. So what are you going to type here? Try करो. सर एक बार दूसरी वाली सीट दिखाइए. हाँ. सर किस नेम का निकालना है? किस नेम का नहीं, जून का निकालना है ना मतलब. अरे जून का क्यों, मैं जो भी टाइप करूंगा वो मंथ का ना. जैन का टाइप अच्छा, करूंगा तो अच्छा, जैन ठीक का है, ठीक है, आएगा. ठीक है, ठीक है. सर दूसरी वाली सीट. हुआ गया सबका? I got some 3 replies. Okay, see here. The month name यहाँ पे है. I'm going to type the month name. बाकी ये names तो fixed है यहाँ पे, already मैंने fix करके रखे हुए. I have the months over here. ठीक है ना? वो भी row number 2 में पड़े हैं months. Okay, so यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ कि equals to HLOOKUP. ध्यान से देखो, HLOOKUP को बोलते हैं HLOOKUP क्या ढूंढना है. ऐसे look for this whatever is written here. Okay, मुझे बोलते हैं कहाँ ढूंढना है ये. ऐसे शीट 1 के अंदर, ठीक है ना. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम A2 बिकॉज सेकेंड रो में है वो. तो ऐसे A2 टू जो भी है Z2 कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है. मतलब पूरा रो में 2 में ढूंढेगा Z तक. ठीक है. अब मुझे पूछता है लेकिन इसको मुझे लॉक करना पड़ेगा ना ये B1 को, बिकॉज इफ आई पुल्ड इट डाउन तो B1 विल बिकम B2 ना देन. तो सब लोगों को इसी को ढूंढना है B1 को, और ये भी लॉक रहेगा मेरा. ये भी हिलना नीचे ना अपना. दिस इज माई डेटा एरे. ओके, सो इफ आई एम राइटिंग इन B1 जैन, तो वो जैन को ढूंढेगा और उसको मिल जाएगा 100%. सेकेंड रो में शीट के अंदर द टाइटल जैन, ही विल गेट इट. बट नाउ व्हाट यू वांट, व्हिच नंबर रो यू वांट. सेकेंड. सर हाँ. एक वो था Z2 तक ही देखेगा या हमें पूरा टेबल एरे पूरा देना पड़ेगा? नहीं, वो Z मतलब वो Z, वो तो 2 में ही ढूंढने वाला है ना. ओके सर. वो तो 2 में ढूंढेगा, लेकिन कहां तक जाएगा, इट विल गो टिल Z. बट इन द सेम रो इट विल गो टिल Z. अब मुझे याद नहीं था इसके लिए मैंने Z दे दिया. अदरवाइज यू कैन गो फॉर HEFG कर दिया तो भी क्या फर्क पड़ता है. मगर वो सेकेंड नंबर रो में ही जाएगा. इट विल स्टार्ट फ्रॉम A कॉलम टू G कॉलम ओनली, लेकिन ही विल नॉट लीव सेकेंड रो. नहीं वो नहीं सर, मेरा क्वेश्चन वो था कि मतलब बाकी डेटा के लिए हमें जो बाकी वैल्यूज के लिए वो देना जरूरी है क्या उसमें, या सिर्फ जो सर्च करना है वही काफी है? नहीं समझा नहीं मैंने. व्हाट डिड यू आस्क. ठीक है सर, आप कंटिन्यू करो आगे, जैसे अगर इन केस गलत हुआ तो. ओके, सो ही इज गोइंग टू लुक फॉर B1 ओनली इन द सेकेंड रो, और उसको मिल जाता है यहाँ पे. तो तुमको क्या चाहिए, 3 चाहिए ना. सर 3 तो 2 + 3 हो जाएगा ना वो. नो, थर्ड रो प्रियंका का है क्या, चेक करो. यही बोल रहा था सर मैं, शायद वो पूरा टेबल देना ऋतिका. पड़ेगा. नहीं, एक मिनट, क्या किया. ये B1 क्या है, बराबर है ना. B1 बराबर हाँ है. वो सही है. शीट 1 का A2 अभी पहले देखना पड़ेगा शीट 1 में किधर से लिखा है. हाँ, शीट 1 का A2 से बराबर है. A2 से लेकर, अरे G1 अपने G12 सर. बराबर बोल रहा है वो बराबर बोल रहा था. अभी G12 तक मैं ना? दिमाग में नहीं आया मेरे. यू आर राइट. मैंने वो क्या, मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि मेरे को सिर्फ जून हाँ ढूंढना है. आपने वही सर्च मुझे किया. जून नहीं, मुझे जून तो ढूंढना ही है, लेकिन मुझे डेटा भी तो चाहिए ना. पूरा डेटा चाहिए. हाँ, तो लेकिन भले आपको बोलना पड़ेगा कि G12. यहाँ पे A2 से लेकर G12 देना पड़ेगा. राइट, करेक्ट. लेकिन वो देखेगा 2 में ही, वो याद रखना. इट विल सर्च इन 2 ओनली, बट फाइन. और उसके बाद सर वो उसके 3 की जगह 2 आएगा ना? हाँ, तो वहां पे सेकंड में लिखा है प्रियंका. नहीं मतलब कैलकुलेशन जो रो सेकंड रो है तो थर्ड रो ये. हाँ नो, वो बोल रहा था. आई वांट दिस. हाँ तो सेकंड रो हो जाएगा ना सर उसके बाद बराबर है, क्योंकि अपना शुरू कहाँ से हुआ, 2 से हुआ. देखो ना, ये तो मैं यूज ही नहीं करता हूँ. यू नॉट बिलीव, मैं HLOOKUP यूज ही नहीं करता कभी. इसे सिखाने के लिए सिखा रहा हूँ, बिकॉज वी हैव ऑल्टरनेटिव फॉर HLOOKUP. आई गो फॉर 2. ठीक है, सो आई गॉट दिस 156. लेकिन प्रॉब्लम ये होएगा ना, इफ आई ड्रैग इट डाउन देन भी मुझे हो सबका जाएगा थोड़ी ना मिलने सर. वाला. आई विल गेट 156 ओनली.
ओके क्योंकि टू these all are actually looking for B1 and giving me what out. 2 बस ठीक है ना, कोई बात नहीं. So what I will do now, Sir, I was almost right. Only one mistake. I had done 7, except 2. हाँ बड़ा मिस्टेक है वो. So I will just write Almost row same function था. here, क्योंकि right now I am on the current row, that is 2, है ना, और मेरे को 2 ही चाहिए. So I press enter, and now if I drag this down, you get Jan का total sales of all my employees. I say May, so you get the May का, you get the June का. ऐसे में ना स्टूडेंट्स लोगों के, अच्छा क्लियर, तो मैंने हाँ यहाँ पे जून नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ जून लिखा होगा, सिर्फ जून. So this you can use for the marks also, mark sheets में भी मैं यूज कर सकता हूँ. I can write the subjects on top, और मुझे पूरे क्लासरूम का सब्जेक्ट्स का, एक क्लास का पूरा मार्क्स मिल जाएगा for one particular subject. So ये भी लुकअप का अच्छा फायदा है ये. एच लुकअप का, ठीक है, लिख लिया सब लोग ने. ये तो शीट इज रेफरेंस, अब शीट नहीं रहता था तो आई कुड हैव डायरेक्टली डन फ्रॉम ऑन दिस शीट ओनली. रजत, यू आर देयर? रजत चला गया. और कौन कौन चला गया? मानसा भी है कि नहीं पता नहीं. सर ये जो रो ब्रैकेट दिया है उससे ऑटोमेटिकली वो प्लस प्लस करंट रो अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली सॉरी, वी आर ऑन द सेकंड रो, तो चल गया. ओके है ना, अगर हम लोग सेकंड रो पे नहीं होते तो फिर आई वुड हैव रिटन हियर इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओनली रो, तो मैं ऐसे दे देता कि एनीथिंग, आई कुड हैव रिटन G2, H2, G2, Z2, कुछ भी दे देता, बिकॉज रो G2 इज 2 ओनली. राइट सर तो भी मेरे को आंसर वही आता, बिकॉज जब मैं पुल करूंगा तो G2 बिकम G3 मींस थर्ड रो. राइट सर ओके, नाउ चलो कम बैक टू द सेम क्वेश्चन. कौन सा क्वेश्चन? कि ये वाला क्वेश्चन. Type the ID and get me the name out. You are trying or what? यस सर सच में ट्राई कर रहे हो आप लोग? इतने अच्छे बच्चे लोग हो यार आप लोग. अच्छा, टेल मी वन थिंग. अच्छा तो अच्छी बात है. हाउ यू आर ट्राइंग? सर मैं तो एक्सेल पे ट्राई कर रहा हूँ एक शीट पे, बट अच्छा अच्छा, मुझे नहीं लगता है पॉसिबल है. नहीं मतलब क्या यूज कर रहे हो आप? एच लुकअप यूज कर रहे हो क्या? वी लुकअप? वी लुकअप कर रहा हूँ सर, ओके लेकिन मुझे पता है वी लुकअप से शायद नहीं आएगा आंसर. ओके, सी वी लुकअप से कभी जिंदगी में आंसर नहीं आएगा. हाँ वो शायद एक्स लुकअप या ऐसे कुछ है सर. नहीं वो सब भी मैं छोड़ दो, वो सब लेटेस्ट वर्जन की बात नहीं करेंगे आप. भाई ओके वो तो क्या, लेटेस्ट तो और भी आएगा, बहुत कुछ आएगा. राइट सर Okay, जो अपने पास में है उससे बात करते हैं. लेट्स सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. Those who will watch my recording, please see that these functions are very important. You should not miss that. And those who are in front of me, they are very lucky that अच्छे से सीख रहे हैं लोग. अभी टाइम दोगे तो बाद में टाइम आपको देगा, सामने डबल कमा के देगा. Okay, so I will type the ID and I should get the name. So if I ask him ki VLOOKUP, do one thing, search for 5555. Always VLOOKUP का requirement है. That VLOOKUP says that whenever you give me the lookup value, please mention the row, or sorry, the column जहाँ पे lookup value आपका है. So I have to start from my E, because ऐसे ही देना पड़ेगा. Because 5555 is sitting in E column, so I have to start my range from E column only. ये must है, ये mandatory है. And I cannot go back, because E से तो शुरू करना है, मगर what I want, that is sitting behind E, that is the name. तो VLOOKUP बोलता है मैं नहीं, पीछे नहीं ढूंढ सकता हूँ. आई कैन ओनली सर्च फ्रॉम योर लुकअप कॉलम से. आई कैन गो फ्रंट फॉरवर्ड, आई कैन नॉट गो बैकवर्ड. सो माई लुकअप कॉलम इज E. आई कैन सर्च, आई कैन गिव बैक टू यू F, G और H. आई कैन नॉट गिव यू D, C. आ रहा है समझ में? यस सर VLOOKUP काम नहीं करेगा. ओके, तो फिर क्या करें? ओके, लेट्स लर्न.
the functions which are already with you all, even you people have the old version, then also we'll have to use the function called index now. Now index use करते चलो. इंडेक्स क्या करता है मानो आपको? इंडेक्स बोलता है give me address of the cell. लोकल भाषा में give me the cell address, give me locations, मतलब cell location, cell address बोल सकते हो आप, and I return cell content. ये बोलता है इंडेक्स, तू मुझे सेल का एड्रेस बता दे. सेल का मतलब होता है a house. A cell is a home, a house which has an address. एक घर जो है इसका एड्रेस है रो कॉमा कॉलम. ये एड्रेस इसका सिस्टम इसका ऐसा है. सो इंडेक्स बोलता है जस्ट गिव मी द रो एंड द कॉलम, आई विल अंडरस्टैंड यू आर टॉकिंग अबाउट विच सेल. तो अगर तूने मुझे बोल दिया कि इट इज 10,2, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये B10 की बात कर रहा है. When you talk about 10,2 means it is B10, सेल B10 हो गया ये, क्योंकि 2 means B, पहला रो आता है फिर कॉलम ये आता है, एंड 10 इज द रो. आ रहा है समझ में? सर ये इंडेक्स वाले में उल्टा होता है क्या? रो हाँ, कॉलम. रो पहला कॉलम, रो कॉमा कॉलम. देखो क्यों मालूम है? क्योंकि इट विल टेक 2 कोऑर्डिनेट्स x और y. ऐसा समझ के चलो, x कोऑर्डिनेट कैसा रहता है? ऐसा रहता है कि ऐसा रहता है? ऐसा रहता है, ऐसा रहता है सर. राइट. सो ये x हो गया, तो पहला रो और फिर y मतलब वर्टिकल, देन कम्स कॉलम. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स हियर. अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूं मैं इंडेक्स को बोलता हूं, see how I am giving the address to index function, and you should see the arguments as equals to index. I'll open the bracket. सबसे पहले देखो क्या पूछ रहा है वो, array. Array means your area. तो मैं बोलता हूँ my array is A to H, means अब मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि I will give you the address from this entire area A to H. मुझे बोलते ठीक है दे दे. अब जैसे ही मैं कॉमा करता हूं, आप देखो सबसे पहले वो मुझे क्या मांग रहा है. व्हाट इज आस्किंग मी? इज आस्किंग मी कि फ्रॉम दिस एंटायर रेंज ऑफ A to H, द एंटायर वर्ल्ड, कैन यू टेल मी व्हिच रो नंबर यू लुकिंग फॉर? ऐसे आई एम लुकिंग फॉर 10th नंबर रो. ओके, कॉमा. फिर वो मुझे पूछता है एनी कॉलम स्पेसिफिक, ऐसे ये सेकंड नंबर कॉलम. दैट्स ऑल. अब ये मेरे को B10, व्हाटएवर इज देयर इन B10 वो मेरे को लाके देगा. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. इस जूड फेरेरा, B10 के अंदर जूड फरेरा लिखा हुआ है. आ रहा है समझ में आप लोग को? यस सर. Index function will always take from you the location of your cell, and the location जो होता है सेल का, it is made up of row and column. ठीक है? Okay. How we can give this? I can also tell him like this. ऐसा भी दे सकता हूँ. Equals to index bracket open with asking me what is the array. I say it's B to B. So यहाँ पे मैंने how many columns I give him? Only one column. So if you are mentioning only one column, तो फिर खाली इसको रो नंबर दे दो. That's all. Then you don't have to give again comma, क्योंकि तुम्हारा कॉलम ही एक है, तो भी I will get Jure Ferreira now. Okay. But in case अगर तुमने ऐसा बोला B to C or B to D, and now if you mention 10, अभी मेरे को हैश रेफरेंस का एरर आएगा. You know why? Because वो बोल रहा है भाई तेरी दुनिया जो है it is B, C and D. There are 3 columns and you are just giving me the row number. Who will give me the column number? Because कौन से column का 10th row है ये? B का, C का कि D का? So if you have more than one column as a data array, then please specify column and row both. अगर एक ही column है तो दे दो आप ऐसा उसको. Is that okay? Yes sir. Okay. Okay, so we have index function like this, and index का एक भाई है जिसका नाम है match. We have a function called match. So index and match,
बोथ वर्क्स टुगेदर, दोनों भाई हैं बट ऑपोजिट हैं। मैच बोलता है गिव मी द कंटेंट, मतलब व्हाट डू यू मीन कंटेंट? लुकअप वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, गिव मी द वैल्यू, गिव मी द कंटेंट ऑफ द सेल। सो आपको ये बताना है कि हु इज एक्चुअली स्टेइंग इन द सेल, उस सेल में कौन रह रहा है, उस टेनेंट का नाम बताओ। तो मुझे बोलना पड़ेगा प्रकाश कुमार, निपुण, गणेश, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो ऐसे वो बोलता है गिव मी द कंटेंट ऑफ द सेल एंड आई रिटर्न व्हाट? एड्रेस। एड्रेस, रो एड्रेस, रो और कॉलम, कॉमा, मैं तुमको ये दे दूंगा। ठीक है, ओके, नाउ सी हियर, यहाँ पे मैंने बोला उसको कि इंडेक्स कैन यू टेल मी फ्रॉम बी टू डी व्हाट इज देयर ऑन द 10th कॉलम का, सॉरी 10th रो सेकंड कॉलम। तो मुझे बोलता है इट्स B2, सेकंड कॉलम वो हो गया ना, सॉरी। सो आई से फ्रॉम A to D, तो आई गेट जूड फरेरा, बराबर है, क्योंकि A to D बोला है ना। तो 10th रो का सेकंड कॉलम इज B, एंड इफ यू स्टार्ट फ्रॉम B देन योर सेकंड कॉलम इज C। ओके, अब यही चीज अगर मैंने मैच को बोला होता तो ऐसे मैच मुझे बोलता है व्हाट यू वांट टू सर्च, मैच को डेटा देना पड़ेगा, तो मैच को देता हूँ डेटा। अब याद रखना, मैच को या तो तुम रो दे सकते हो, कॉलम, या फिर रो। तो ऐसे कैन यू फाइंड फॉर दिस जूड फरेरा, मुझे बोलता है ठीक है, किधर? ऐसे हियर इन B2B, आई कैन नॉट से B2D, B2C नहीं दे सकते हो आप, क्योंकि वो एक ही कॉलम में ढूंढेगा और रिटर्न कुछ नहीं करने वाला है। तुम बोलेगा कि B2D देने का और फिर मेरे को लोकेशन, इट इज नॉट वी लुकअप, वो सिर्फ रो नंबर निकाल के देगा। नाउ ऐसे कॉमा 0, दैट्स ऑल। इट मीन्स, याद रखना, इन मैच यू कैन ओनली स्पेसिफाई 1 कॉलम और 1 रो, बस। यू कैन नॉट सिलेक्ट मल्टीपल कॉलम्स बिकॉज द पर्पस ऑफ मैच इज नॉट गिविंग यू स्पेसिफिक कॉलम्स निकाल के नहीं दे रहा है ना, वो आपको रो नंबर निकाल के दे रहा है। तो आप एक कॉलम दे देगा तो भी वो रो नंबर निकाल के देगा। तो मैं इसको बोलता हूँ 02 में जो भी लिखा हुआ है जूड फरेरा, वो ढूंढना है। मुझे बोलता ठीक है, किधर? मैं बोलता B में। अब वो क्या करेगा, जूड फरेरा कौन से रो में बैठा है वो निकाल के देगा। इट मींस आई विल गेट 10 नाउ। अंडरस्टूड? सर एक बार फंक्शन पे दिखा दो ना, फुल। वो 0 वाला देना है ना सर इसमें, मैच ट्रू हाँ, मैच आप यहाँ पे लिखो ना, यू कैन राइट हियर, आप ऐसा भी दे सकते हो, लुक फॉर राहुल, दैट्स ऑल। वो राहुल ढूंढेगा पूरे B में, अभी नहीं मिला। अब जैसे ही सपोज मैंने B कॉलम में किधर भी जाके यहाँ पे खाली राहुल लिख दिया, अब वहां पे 5 मिलेगा तुम। वो बोलता है राहुल इज सिटिंग इन 5th रो। ठीक है, सो कैन यू पीपल ट्राई? पीपल में सिर्फ अभी 2 ही बचे, बाकी कोई ट्राई नहीं कर रहा है, कोई नहीं, सब फौजी जख्मी होके जा रहे हैं। सो ओनली 2 सोल्जर्स आर लेफ्ट, निपुण एंड प्रकाश। टेल मी वन थिंग, I will write the ID in K1 और ID is sitting in column E। ठीक है, मैं 5555 टाइप करूं या कुछ भी टाइप करूं, any ID in K1 will give me back the name of that ID। यूज करके बता सकते हो आप? कैन यू यूज अप्लाई योर ओन लॉजिक्स? नो आंसर्स फ्रॉम एनीवन? चलो ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं। ये एच लुकअप वी लुकअप की ज्यादा आदत है। एच लुकअप मेरे को थोड़ा सा समझना पड़ रहा है। एच लुकअप पे काम नहीं होता, बहुत रेयर ही होता है। ओके, नाउ सी, ये काम वी लुकअप करके दे सकता है क्या? नहीं सर। एच लुकअप करके देगा? सर इन दोनों में लिमिटेशंस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको ढूंढना क्या है? 5555 या यहाँ पे क्या आने वाला है? यू आर गोइंग टू सर्च द आईडी नंबर्स, राइट? एच लुकअप आईडी नंबर्स तुम्हारा कैसा पड़ा है? देखो, द आईडी नंबर्स आर सिटिंग लाइक दिस। एच लुकअप कैसा ढूंढ सकता है ये? बिकॉज आपका ऐसा पड़ा हुआ है, नॉट पॉसिबल।
एच लुकअप तो ऐसा ढूंढेगा, हम्म और आपको जो ढूंढना है वो ऐसा पड़ा हुआ है, इट्स सिटिंग लाइक दिस, सो इट्स नॉट पॉसिबल। वी लुकअप कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वी लुकअप ढूंढ तो लेगा, मगर मुझे जो चाहिए पीछे नहीं वो जाएगा, लुकअप वैल्यू के पीछे वाला चाहिए, बैकवर्ड वो नहीं पीछे हो वाला सकता, नहीं चाहिए। ये दोनों नहीं लगेगा। तो एक काम करता हूं मैं मैच को, इंडेक्स को बुलाता हूँ, देखता हूँ इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स मुझे बोलता है कि व्हाट यू वांट, मुझे क्या चाहिए, आई वांट नेम, वी वांट नेम राइट। तो इंडेक्स को बोलता हूं मैं, इंडेक्स आई वांट समथिंग इन द कॉलम बी, मुझे पता है कि बी में नाम है, इज दैट क्लियर। यस, तो इंडेक्स बोलता है ओके, एक ही कॉलम दिया है मैंने, अगर मैंने एक ही कॉलम दिया है इट मींस मुझे अभी सिर्फ उसको रो नंबर देना है, बिकॉज कॉलम तो देना जरूरी नहीं, वी हैव ओनली वन कॉलम, सो आई डोंट नीड टू स्पेसिफाई ना विच कॉलम नंबर बाहर, सिर्फ रो नंबर। अभी वो मुझे पूछता है कि फ्रॉम द एंटायर बी कॉलम बता विच रो, अगर मैं उसको बोलूं 10th रो या 6th रो या 5th रो, तो ऐसे ही पाई बोल के एंटर मार देता हूं मैं, तो मुझे बोलता है राहुल है, लेकिन मुझे आई डोंट नो ना रो कौन सा है वो, बट व्हाट यू नो, आई नो इज आईडी नंबर। तो सोचो अगर आईडी नंबर का रो पता चल जाए तो वही आईडी नंबर का रो तो वही नाम है, यू आर गेटिंग मी। यस, अभी देखो यहाँ पे, अभी जब वो मुझे बोलता है कौन, इंडेक्स, कि फ्रॉम दिस बी कॉलम विच रो यू वांट मी टू गेट आउट, तो ऐसे मेरे को रो तो मालूम नहीं है यार, लेकिन एक काम कर, मैच के पास जाता हूं मैं, मैच को बोलता हूं मैच कैन यू सर्च फॉर दिस K1 में मैं आईडी नंबर लिखने वाला हूं, तो मुझे बोलता है यस आई विल सर्च, मैं बोलता वेर यू वांट टू सर्च दिस, ऐसे कैन यू सर्च दिस इन E, 0। अब ये मैच खत्म हुआ और ये मेरा इंडेक्स खत्म हुआ। सो सी दिस, द फर्स्ट वन, वो कॉलम के अंदर विच रो, ये मैच उसको देखो रो निकाल के देगा, सो ओनली दिस पर्सन, अभी F9 करता हूं, नहीं, सो मैच बोलता है 9th नंबर पे ये आईडी बैठा है, सो 5555 इज द आईडी ऑफ जोनाश, ओके। सो इफ आई टाइप दिस 4371 तो मुझे बोलता है इट्स सेरिना। अब ये उल्टा भी जा रहा है ना, so in this way you can merge both। so VLOOKUP यहाँ पे कभी काम नहीं कर सकता है। So can you re-explain? अब समझ आ गया सर, हाँ जी, अब समझ आ गया। yeah, Nirutal, what you asked me, Can you re-explain? okay, you were not there, Yeah, but some issue. okay. Before I explain this, I actually explain index and match individually, so did you attend that? Yeah. Okay, so index, the purpose of index is getting the data for you and asking the address। so index बोलता है कि tell me what data you want me to get for you, so I say the data is sitting in B because I want the name। तो index बोलता है ठीक है, from B column give me the row number so that I can give you in the B column the row number, I will give you the data inside that, and I don't know the row number, so I called up match because match का काम ही row number निकाल के देना है, but match always ask me for the actual data। तो match बोलता है what you want me to look for, so I say look for K1। now what is K1? K1 is, I can write here, suppose instead of K1 I will write here say 2671, ये वाला एक, there is a ID, I say 2671। तो मैच को बोलता हूँ मैच कैन यू लुक फॉर 2671 इन E, E means this one, and match क्या करेगा, it will give me the row number of 2671 from the column E, and this row number it will give it to index, and index जो है from this B column it will give me the row number out, and it says it's Andrea because 2671 this one, इसका row number is 6, or then from B column index is giving me out Andrea Mendonza, ये वाला, the output is, main output is index, ठीक है। ठीक है। चलो अगर आपको समझ में आ गया है तो ये सॉल्व करो, ओके।
Listen to this question very carefully. We'll be typing मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, I will type here the name of my employee. Okay, हो सकता है कि this report is somewhere else. मैं लिखूंगा यहाँ पे, can you give me जून का May month का sales please, and I should get June May, that is 58. जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ जून, I should get 100. जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूंगा Jack, I should get Jack June 47 because it's Jack and June. I type March, I should get Jack March 133. So now this is called two-dimensional lookups. Two-way lookups. वो दोनों तरफ से lookup करेगा, यहाँ भी वहां भी. शुरू हो जाओ. Let's see how do we do that. I will write here equals to VLOOKUP. VLOOKUP will always look vertical. Huh? मुझे बोलता है what you want to look for. I say look from A2 to G12. वो देना पड़ेगा ना सर पहले B15 वाला रेफरेंस. हाँ, पहले तो उसको लुकअप देना पड़ेगा. सॉरी, लुकअप वैल्यू. माय लुकअप वैल्यू इज जैक. B15. सॉरी, या लुकअप फॉर दिस B15. पहले तो मुझे बोलना पड़ेगा लुक फॉर जैक जोस, जो भी लिखा हुआ है. तो इट विल लुक इन यहां से यहाँ. बट नाउ द क्वेश्चन इज ही विल गेट जैक, नो डाउट. जैक तो मिल जाएगा क्योंकि इट विल लुक इन ए कॉलम एंड इट विल ए कॉलम में ही विल गेट जैक. बट विच मैच, सॉरी जैक ए रो में 9th रो पे मिलेगा उसको. नाउ विच कॉलम यू वांट आउट. जैक के रो में विच फील्ड, कौन सा कॉलम बाहर चाहिए? आई डोंट नो, इट डिपेंड्स ऑन माय मार्च. मैच. तो यहाँ पे मुझे कॉलम नंबर चाहिए. आई वांट द कॉलम नंबर ऑफ मार्च. सो आई विल कॉल मैच फंक्शन को बुलाता हूँ. ऐसे मैच, कैन यू लुक फॉर दिस MAR. मुझे बता ओके वेयर यू वांट मी टू लुक दिस. I will just give only one row. That's only one row is required because मुझे तो नंबर चाहिए. If you are giving match को ऐसा, match will give you the column number. If you are giving match को vertical, it will give you the row number. तो match को मैंने दे दिया and match को बंद कर दिया. And now I am closing my VLOOKUP. But before that, I have to say 0 for VLOOKUP last का, because the first argument is the lookup value. The second argument is the data array from your A2 to G12. Or the third argument is the column number which is given by match, and the fourth argument is range lookup, exact or approximate. It's very important. You should always give (0), नहीं तो आपको गड़बड़ आंसर आएगा. You will not get the correct answer. So if I type enter now, I should get Jack का March, that is 133. है ना? So let me change this Jack to Ruby. So I got 192 because Ruby का March का. Okay, let's go for June. So Ruby June is 191. You getting it? Yes sir. तो ऐसे चेंज करते जाओ. Okay, the same result we can use, we can give by only index and match. तो भी मिलेगा without using VLOOKUP. Okay, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? We did VLOOKUP and we use match. So VLOOKUP will only search for the James in this column, but we wanted match to give me out which column number you want, and for that I used match to please give me the column number of June, July, whatever the month is there. So match वो काम कर रहा है. I will use the same thing now. The same result you will get if I use this. Instead of VLOOKUPs, I will say index. Okay, index मुझे बोलता है what you want out. Array क्या है तेरा? I say my array is sitting in, ये पूरा दे देता हूँ मैं इसको. Any cell in this entire area. Okay, फिर मुझे पूछता है if this is your area, then give me the row number first. Which row number?
from this entire column range. तो ऐसे row number will give, take it from match. Then match मुझे बोलता है कि किसका row number चाहिए, what is the lookup value? I say it's James. Okay, मुझे बोलता है James का lookup value. Fine. From where? Row number. I say it's sitting in A2, A2 to A12, right? Comma 0. Okay, this is what my row number is. Now he's asking me what is the column number. I say column number will also provide you match function, because I don't know the column number, because the column number depends on my month, right? तो match को वापस से बुलाता हूँ, match index को column number दे दे. तो match is telling me what to look for. I say look for June. He's asking me where do you want me to look for June. I say in only the first, this row. And comma 0. And this my row and column, comma, row and column both are mentioned. And last I will close my index function, and let's see what answer I am getting now. Still, I am getting 30. So this is my formula. So this result we received using this, and this result we got using this. So the function formula text will always give you the formula inside. It will give me out the exact formula what is written inside. तो आपको सिर्फ reference देना है. Okay, one more thing. We can also use one simple command to get the things. चलो वो भी अपन बाद में देख लेते हैं फिलहाल. Okay, now let's say that can I use जैसे 30 है ना ये. Let me highlight that so that it becomes a little more interactive. So if I type the James and if I type the month name, so the 30 जो है that is James June. तो James का June is sitting over here. So this should be highlighted like this. ऐसा है ना. So if I type it James की जगह पे, if I type anything, it should be, so it should continuously highlight. So it will catch my eye कि उसका सेल्स नंबर यहाँ पे मुझे डायरेक्टली दिख जाएगा, है ना. So क्या करेंगे इसके लिए? Conditional formatting. Yeah, conditional formatting. But I'll have to select everyone. Yes. और कुछ नहीं बोलना है उसको. In the conditional formatting, I say select a new rule, and I'll go to formula. I'll go to format, and I say fill this with light blue color. And formula क्या रहेगा? I say formula is anything. I start from my A2 cell. A2. So when you say A2, it's A2, B2, C2, D2, A3, B4, all my cells are actually matching themselves own self to this cells. Whoever looks like 30, it will wear this clothes. ठीक है ना? So instead of June, I will type March. Instead of James, I will type Vicky. Now, when I told Vicky, he's giving me 33 because he's actually looking this here. So unfortunately, 33 वाले 3 लोग हैं, तो इसने ये गड़बड़ कर दिया. सर इसमें एक और सवाल पूछना था. आपने A2 का इक्वल टू A2 क्यों लिखा? अरे वो तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, क्योंकि मेरे सिलेक्शंस के अंदर A2 आ गया था ना. बिफोर आई वेंट टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मींस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आई वांट टू कलर, एंड आई सिलेक्टेड एवरीवन. Yes, sir. After selecting everyone, when you go to conditional formatting and you ask him to color the cells, it means all my cells are now listening to you. Yes, sir. Do I have to color myself? Every cell is asking you, do I have to color myself in blue? Do I have to color myself? तो मैंने उसको बोला, everybody listen to me properly. You will have to color yourself only if you find yourself as 33.
So I just mentioned only A2. So when you say A2, A is also open and 2 is also open. I have not locked. So तुमने जब A2 बोला ना, तो अंदर से A3, A4, B2, B3, B4, C3, C3, C4, Z, ये G12 तक all the cells अंदर से अपने आप का फॉर्मूला बना रहा है. What formula is making here? You know, this cell if they are equal to B17. G12 is equals to A13, 17. अंदर से फॉर्मूला बन रहा है. G12 is equals to A17, sorry B17. Okay. अभी ये जो 33 है, इसने अपने आप का फॉर्मूला बनाया रहेगा. क्या? ये C7 is equal to B17. Yeah, because B17 lock था. Yes, sir. Got it, sir. So that is why. So this fellow is actually asking himself कि B9 equals to B17. तो yes, it is equal to. तो इसने कर दिया blue. Is this fine? Any questions? Yes, sir. No, sir. But I have a question here. Why this 3-3? No, I don't want this 3 to happen here. When I am asking him Vicky Marathi, March, then it should be Vicky March. Why these two are there? Correct? Yes, sir. ये आपका homework है. So actually, I was trying to say that it's very, very, very amazing, and I was not aware for this type of use of these functions. So, but I want you people to be in front and eat my brains, because this is the live ka maza. Recording, everybody can see the recording, but what about your queries? Because in recordings you cannot solve your queries, right? Whatever I will teach, definitely you people will just see my recording. Whoever is watching my recording, I'm just telling you people that if any queries comes to you, it can be solved only when I'm in front of you. Yes, sir. See now see what happened. This came into picture. Like three cells got colored. You know why? अगर ये color नहीं होता ना, तो I wanted some of you to asking me, but sir, if any of other person would have got 33, then it should have come. ये तो अभी color हो गया तो मेरे को दिख गया ना. अगर color नहीं होता तो I wouldn't have asked this. Yeah, actually, I was just trying to ask and you asked the question. Okay, okay. Keep on asking, because it will really help you out to solve the queries. Huh? So see you guys again day after tomorrow. Be little alert, because now 3 sessions are left. We are going to do ifs, multi-ifs, nested ifs. बहुत कुछ है. Formulas form करना, I will make you all very thorough how to write the formulas. चलो ठीक है. सर ये जो 3 हुए हैं तो इसको हटाने के लिए वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ही होगा ना? बिल्कुल कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ही होएगा वो. राइट सर. अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्यों तीनों को कर रहा है? Because each and every cell is matching himself with only this cell. That is the reason it is doing that. So खुद सोचो कि why he will skip these two. ऐसा तुमको अंदर से क्या बोलना पड़ेगा जिससे ये दोनों हट जाएं? Only this will remain. ठीक है? Yes, sir. चलो, see you guys day after tomorrow.